My dear student, this is Uttam Dev from JNB Hailakandi, Assam. Today we will know about formation of a joint stock company. Sole trading business and partnership business formation is very easy. Does not require formalities much. Anyone can start, or two or more person can start partnership. We have learned in earlier video the meaning of joint stock company, features and merits, demerits and types of company. Where we have seen the special thing, a joint stock company is ultimate form of business. This company having their legal identity, existence, it is independent Swiss member. This is the special category, business having own identity in the eye of law, where shareholders are not responsible. So and so members, shareholders liability is limited. So many items we have, common seal is there. We have learned. Let us know how a company form. कैसे एक company बनता है? As we know, company start by law, run by law and end by law. So each and every step is under the provision of Companies Act 2013 or previous Act 1956. So let's start. What are the steps or stages involved in formation of a company? It's very important to know, being an entrepreneur. Any entrepreneur would like to know how to start a company in the modern scenario. Let's start formation of company. This is a lesson plan. This is a chapter of class 11. See, we have seen yesterday that joint stock company is a voluntary association of persons who contribute money to carry out the business. We have learned that sole proprietorship organizations or partnership firm does not require much formalities to start or where, but it is not so for in case of company. This sole proprietorship partnership registration is not compulsory, but our joint stock company must be registered under Register of Companies Act, with the Register of Companies. This is very important. It must be registration with the Register of Companies. It is mandatory. Otherwise, it cannot start the business activity. Okay? So, in this lesson, we will learn the various stages involved in the formation of company. Now, very important. What are the stages? What are the stages for getting the registration, or you can say to start the business? एक भी काम नहीं कर सकता है जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक उसको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा. ठीक है? तो क्या क्या स्टेज है? The right from the origin of idea to establish a company goes through 4 different stages. How many stages? 4 stages. What are these? Promotion, incorporation, raising capital, commencement of business. Out of these 4 stages, for private company, after incorporation, private company can start. But public company cannot start the business activity till getting the certificate of commencement. Are you getting? Okay, later on we will discuss thoroughly. Let's go. The first stage, there is promotion. Now, हमारे घर में कोई नया मेहमान आते हैं, जन्म होता है, तो उसके जन्म के पहले ही हम लोग नाम सोच लेते हैं. जन्म होने के पहले ही बहुत सारे प्लान किया जाता है. आफ्टर टेकिंग बर्थ हम लोग पहले ही उनको लड़का से लड़का का नाम, लड़की से लड़की का नाम. सिमिलरिटी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये काम पहला है. पहला कंसीव होना है. माइंड इट. कंसीव इन ए पर्टिकुलर पर्सन विद इन द माइंड और ग्रुप ऑफ पर्सन के माइंड में आना है. सो जो
आदमी ये सब आइडिया लेके चलेगा और आइडिया उसके अंदर में क्रिएट होगा relating to the business activity. Mind it. Simply refer all those activities that are required to be undertaken to start a new business. Now here you see, it starts with the conceiving an idea of business. Business के idea दिमाग में आना है। ये शुरुआत promotion मतलब उसका शुरुआत कहाँ है? Conceive होना है। एक idea generate होना within the mind of a person or within the group of person or an institution. Opportunity for doing business. And then assess the feasibility. खाली आइडिया आने से नहीं होगा, कितना हद तक वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, उसको अप्लाई कर सकता है, उससे बेनिफिट ले सकता है, सही में लागू कर सकता है. Then take necessary step to launch the business. My dear student, you see, now this is the first stage, or you can say promotion stage of formation of a company. First stage. There are 4 stages. I told you earlier. For promotion, second incorporation, third raising capital, fourth commencement of business. For public limited company चारों फॉलो करना है, ठीक है? और जो पर्सन ये स्टार्टिंग में है, इन्वॉल्व है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? प्रोमोटर्स. जिसके दिमाग में ये आ रहा है, ठीक है? उसका कैपेसिटी है, वो मेंटेन मैनेज करेगा और असर्टेन करेगा कितना की जरूरत है, मटेरियल क्या जरूरत है, वो सब खुद करेगा. जैसे कि हम लोग बोलते हैं अभी पतंजलि के बारे में, वो नो डाउट कंपनी नहीं है, लेकिन आइडिया तो आया, कंसीव हुआ. इसी तरह जैसे कि अभी हम नया कुछ फार्म खोलने जाएंगे तो हमारे भी आइडिया हो, कैसे जनरेट हो, किसी का दिमाग में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट. Now, see importance and relating to promoter, the person involved or group of person involved or institution involved to start the business. Even government also being a can start a business. Then we become promoters, state government or central government. Let's start. See, promoter means a person, a group of person who conceive the idea. Mind it, who conceive the idea, setting up the business. And assess its feasibility and take necessary steps. 3 parts: conceive the idea, assess the feasibility and take necessary steps. These are the stages of promotional part. Now promoters play a pivotal role in the promotion of company. He conceive again, it is repeated, analyzes the prospects, work out the tentative scheme of the organization, brings together the requisite man, material, machine and money and start the enterprise. This is the promotion part and role of the promoter. See, who are the promoters? Type. I told you, a person can become a promoter, a group of person. There are many type of promoters. See, professional promoters means they are specialists in promoting new business. वो उसके दिमाग में आता रहता है, नया नया आइडिया आता रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड, ठीक है? दे डू ऑन होल टाइम बेसिस एज देयर ऑक्यूपेशन. उनका ऑक्यूपेशन ही है आइडिया देना. जैसे कि हम लोग विवेक बिंद्रा का लेक्चर बहुत सुनते हैं, उनका आइडिया जो है, यू कैन से दे आर द प्रोफेशनल promoters. They are giving idea. They initiate all steps, establish new enterprise, find out the person who can finance it. इसी तरह बहुत सारे नॉट ऑफ विवेक बिंद्रा मोटिवेशन स्पीकर, इसी तरह मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह आदमी है, एक्सपर्ट्स है, वो आइडिया जनरेट करता है, उसके बाद फाइनेंसर का भी अरेंज करता है, मटेरियल्स का भी अरेंज करके देता है टू स्टार्ट द बिजनेस. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज, द पास द मैनेजमेंट टू देयर ओनर्स और शेयरहोल्डर्स, and then move to another new venture. वो खत्म कर देता है शुरू. जैसे कि रिसेंट एग्जांपल में आप देखिए, ये जो फ्लिपकार्ट है, स्टार्टेड बाय इंडियन ग्रुप ऑफ पर्सन एंड इट वाज व्हेन इट वाज अप टू द बूम लेवल, इट वाज हैंडेड ओवर टू द वॉलमार्ट. सो अभी वो लोग दूसरा काम करेंगे, दूसरा जगह पे फील्ड में चले जाएंगे. सो इसी तरह उन लोगों में हम लोग बोल सकते हैं प्रोफेशनल प्रोमोटर्स. ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल प्रोमोटर्स मीन्स these promoters float companies only during the favorable condition.
favorable condition in the securities market, very important. फाइनेंशियल प्रोमोटर्स, वो लोग का फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा. दे हैव फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड लुक फॉर व्हाट द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट. उन लोगों को देखना है कि कौन सा प्रॉफिट. जैसे रिसेंटली स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना इनिशिएशन. इमीडिएटली जो क्या बोलते हैं वो लोग एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल प्रोमोटर, दे कैप्चर द मार्केट एंड दे इन्वेस्टेड देयर मनी. Okay, and they gain also. Then they shift, मतलब fluctuating their plans time to time or decisions. They are financial promoters only giving the favorable condition of the securities market. Favorable condition को use करता है, उससे फायदा लेता है. Next, technical promoters. You see, these promoters are technical experts in different fields. They make use of their specialized knowledge, experience and training promoting a new business. They charge fees for their service. Advertisement के लिए, technical production to produce a particular product, they provide idea or technology to produce their product. अभी मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर लागू करने से वो अच्छा क्वालिटी बना सकता है. इसी तरह ये सब प्रोमोटर्स है, टेक्निकल ग्राउंड में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट बना के बेच देते हैं. या टेक्नोलॉजी मैकेनिकल बोलिए या ऑटोमोबाइल में बोलिए, कुछ अपना आइडिया लगा के इसमें कुछ ऐड करके वैल्यू ऐड कराते हैं तो वो अपना प्रोजेक्ट को बेच देते हैं. तो दे आर नोन एज टेक्निकल प्रोमोटर्स. वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंटरप्रेन्योर, दे आर द पीपल हु कंसीव न्यू आइडियाज, take necessary steps and they set up business. You need to give it shape and ultimately control the business. It is required. That is important for our economy. Entrepreneur promoters, जो कंसीव करता भी है आइडिया, ठीक है, और वो सारे स्टेप अपने ऊपर लेता है और करता भी है, और करके जैसे कि उसको चलाता भी till the life is going on. टिल द एंड ऑफ द लाइफ, और वो चलाएगा, बाद में शिफ्ट होगा, हैंड ओवर कर देगा. लेकिन इसका जैसे कि एग्जांपल देखिए, मोस्ट प्रोमोटर्स इन आवर कंट्री, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब है ऑल इन दिस कैटेगरी. एंड दैट इज वेरी एसेंशियल माय डियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरियल प्रोमोटर्स. वो लोग जैसे कि रिसेंट, नॉट रिसेंट, फर्स्ट अबाउट नैनो कार, क्या हुआ, रतन टाटा के दिमाग में आया कि एक छोटा फैमिली, एवरेज पीपुल, मिडिल क्लास पीपुल, छोटा फैमिली अपने बच्चे को लेके, फैमिली को लेकर आराम से बारिश में भी चल सकता है. उनके दिमाग में एक आइडिया कि छोटा कार, लाख टोकिया कार. तो आइडिया पहले बहुत मार्केट शेयर कैप्चर किया, इनिशियल स्टेज में हाई जाम किया, बट बाद में वो फ्लॉप खा गया. लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं पीछा, काम करते गए उसके ऊपर, उसको प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाते गए. लेकिन लास्ट में अनफॉर्चुनेटली बोलूंगे या बिकॉज ऑफ पुअर स्ट्रेटेजी मार खा गया, गरीबों का कार के नाम पे ब्रांड हो गया. अल्टीमेट कोई अपने को गरीब शो नहीं करना चाहता. इट्स नेचुरल. दैट पॉइंट वाज नॉट कंसीडर्ड, आई फील. ओके, दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड इन आवर इकोनॉमी फॉर डेवलपमेंट एज ए होल एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. Next, very interesting, specialized institutions. My dear student, ये इंस्टीट्यूशन ही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोवाइड गाइड करता है तो लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट. आपके पास कोई आइडिया है, जैसे कि आपके पास जैसे फिल्म बनाते प्रोड्यूसर फाइनेंस करता है, सिमिलरली आपका प्रोजेक्ट है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का, प्रोडक्शन करने का या डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई भी एक चैनल आपका आइडिया है, उस आइडिया को रेस्पेक्ट करेगा, फाइनेंस करेगा, ठीक है. ऑफन कोलैबोरेट विद द एंटरप्रेन्योर्स एंड टू प्रमोट द न्यू बिजनेस, नया बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करते हैं. दे आल्सो प्रोवाइड मैनेजमेंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट सपोर्ट टू गेट द सक्सेस, ठीक है. तो गवर्नमेंट दे आल्सो प्रोवाइड. नेक्स्ट, दिस इज द स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट, गवर्नमेंट आल्सो कैन बिकम promoters. Yes, government can start big project like a dam
railway project, the road construction, so and so, the telephone industry, whereas we have seen also in many areas where oil refinery, HMT, ONGC, SAIL, where government has started the business. They are also known as promoters. So these types of promoter, these are the promoter types of promoter. Now, in promotion में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है? What are various steps involved in promotion project? Promoter क्या है समझ गया, promotion क्या है समझ गया, कौन promoter है और कितना टाइप का promoter है समझ गया. ठीक है, आगे चलते promotion का steps क्या है. फॉर्मेशन का स्टेप के अंदर एक promotion स्टेज है और promotion स्टेज के अंदर सब स्टेप्स है. क्या है promotion स्टेप? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया. हाउ मेनी? देयर आर 4. Very important, discovery of business idea, my dear. Discovery of business idea, then investigation and verification, nothing but feasibility and viability. Assembly, financing the proposition. There are 4 stages in promotion to start a company. Okay, first you see discover the idea. Idea आना पड़ेगा, किसी के अंदर में, दिमाग के अंदर में idea आना पड़ेगा. तो idea come from कैसे आएगा? पकड़ लीजिए. आप देखिए, आप हमारे मार्केट का सिचुएशन क्या है? कोरोना प्रॉब्लम है. तो इसमें से बहुत सारे का आइडिया है. मास्क बनाने का आइडिया है. नॉन अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी मास्क नहीं मिल रहा था, तो किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मास्क का अपॉर्चुनिटी का अप्लाई किया. सो ये सब आइडिया आना है बिकॉज ड्यू टू द एनवायरमेंट और एनी अदर सिचुएशन. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन जो बोलते हैं, उसी को यहाँ लागू कर सकते हैं. किसी के दिमाग में आएगा. आप कहीं जा रहे हैं, दुकान में जाके भीड़ है, उस दुकान का सर्विस दे नहीं पा रहा, लाइन में खड़े आप, तो उस टाइम आपको आइडिया है कि नहीं, मैं भी इधर एक खुलने से अच्छा है, सेम इससे अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन देंगे. सो एक आइडिया किसके पास आया? इन अर्ली 1940s. पहले लोग क्या करते थे 1940s में? बड़े बड़े रेडियो लेके गर्दन पे लेके गाना सुनते थे. उसके बाद क्या है? वॉकमैन आया. वॉकमैन एक आइडिया, वॉकमैन मतलब पॉकेट में टेप रिकॉर्डर टाइप का है, रेडियो आता था, छोटा डिवाइस. उसको डेवलप किया 1940s में. ये जो एग्जांपल दिया है देखो, अर्ली 90s, कोई वॉकमैन नहीं था, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने देखा कि लोग तो घूमते रहते उसको लेके सुनने के लिए. ठीक है, तो कुछ तो किया जाए कि छोटा डिवाइस निकाले और उसको बाजार में बेच सके. डिमांड हाई होगा, पक्का होगा था. अभी क्या है? अभी तो वो वॉकमैन नहीं चलेगा. अभी कोई अगर वॉकमैन बनाए नहीं होगा. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का गाना है, सब क्लाउड में रहता है, ड्राइव में रहता है. ये थोड़ा एक मोबाइल लेके जाने से सब डॉक्यूमेंट, सब गाना, सब फिल्म आ जाता है. सो आज का जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपको देखना है क्या नेसेसिटी है, उसी को सॉल्व करना है, उसी को उससे क्रिएट करना है. ठीक है, तो वॉकमैन आया था तब उसको लागू किया गया. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन विद इन द प्रमोशन. प्रमोशन का सेकंड काम है. प्रोमोटर्स का काम क्या है? अरे वो सोच लिया हो जाएगा तो नहीं, उसका कितना फिजिबल है, कितना हम सही में प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, वॉकमैन वाले बारे में तो आपने सुना है कि 1940s में तो देखा कि उसको स्टडी किया गया, इज इट पॉसिबल और नॉट इन द मार्केट. सो वंस आइडिया कंसीव, ए थोरो इन्वेस्टिगेशन इज मेड टू एस्टैब्लिश द साउंडनेस ऑफ द प्रोपोजिशन. ये थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है. टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इट्स क्या लिखना है? वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड कमर्शियल वायबिलिटी. अगर टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सब देखिए, अभी पेन से लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पेन नहीं उंगली से हो जाए, तो टेक्नोलॉजी है या नहीं? मैं चाहता हूँ मेरा आइडिया है कि नहीं उंगली से हो जाए. ठीक है, अब वो टेक्नोलॉजी उनको अवेलेबल होना पड़ेगा टू मेक इट. इसीलिए उसको स्टडी करना जरूरी है. देन वो खर्चा इकोनॉमिकल होना है ताकि सब खरीद सके या उससे काम में लगा सके. तो कमर्शियल वायबिलिटी देखना है. So if there was no technology by which size of the radio could reduce to small to transmit the sound from the radio, कान में सुनने के लिए earphone, the proportion producing this Walkman would have been impossible. ये impossible होता अगर वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं होता
और सस्ते में नहीं होता, सस्ता मतलब अफोर्डेबल नहीं होता तो संभव नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बट cost involved is making workman would be so high that no customer could be able to purchase it, or the demand is to be limited, the return of the investment is low, the idea is not considered as commercially viable। अगर उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, प्राइस ज्यादा है तो वो नहीं करेगा। इसीलिए टेक्निकल विजिबिलिटी, कमर्शियल वायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और ये तीनों का रिपोर्ट बना के देना है। इसको क्या बोलता है? इट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसको स्टडी करके एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाना है, और विजिबिलिटी रिपोर्ट सिर्फ आइडिया से नहीं होता है। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं और आइडिया दे दिया नहीं, उसको टोटल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, नथिंग बट इन्वेस्टिगेटिंग एंड वेरिफिकेशन द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी एंड whether प्रॉफिटेबल और नॉट, ये भी देखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्रमोशन का इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। थर्ड, असेंबली। अब तो है, प्रॉफिटेबल भी है और आपका ये है क्या बोलते हैं, फिजिबल है, टेक्निकल फिजिबल है, अवेलेबिलिटी है, लेबर है, मशीन है, सब कुछ है, लेकिन वो कहां से जोड़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली है लेकिन उसको लाना पड़ेगा। तो वंस प्रमोट अ कांसेप्ट द फिजिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन, ही टेक्स स्टेप्स टू असेंबली अरेंजमेंट फॉर ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, जो जो जरूरत है, लैंड, लेबर, कैपिटल, बिल्डिंग, उसको एक साथ जोड़ना पड़ेगा। एंड डिसीजन आल्सो टू बी टेकन मेड रिगार्डिंग द साइज, लोकेशन, लेआउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो दीज आर द असेंबलिंग पार्ट, ऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ द प्रोमोटर्स। सबको जोड़ना है, सबको कलेक्ट करना है, ठीक है, जो जो जरूरत है, ठीक है। तुम नहीं कह रही एग्रीमेंट, किसी के फाइनेंसर के साथ एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो भी करना है, ठीक है, टू स्टार्ट द कंपनी। पैसा तो इजीली कोई नहीं देगा फटाफट, तो जो देने वाला है उसको समझाना, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। बैंक हो, कोई फाइनेंसर हो, प्राइवेट हो और पब्लिक हो, जो भी है कंपनी के, उसी को कन्विंस करके उसको फाइनेंसर को रेडी करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो ये असेंबलिंग का पार्ट में आ जाता है। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन में देखो, वही मैं बोल रहा हूँ, एट दिस स्टेज फाइनेंशियल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड। अब खुद का पैसा कितना चाहिए, बाहर से लोन कितना लेना है, संभव है या नहीं, मार्केट में शेयर बेचना है या नहीं, ये सब डिसीजन रहता है। तो वो कहां से आएगा, कितना पैसा खुद का मतलब शेयर होल्डर का होगा, कितना लोन होगा, दीज आर टू बी डिसाइडेड। एट दिस स्टेज फाइनेंशियल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना पैसा जरूरत है, उसमें नेचर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना कैपिटल रेज फ्रॉम ओनर्स, ओनर से कितना लेगा, एंड बाहर से कितना लेगा बैंक से, और दूसरा रास्ते से कितना लेगा, हाउ एंड व्हेन इट टू बी रेज शेयर कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कितना पब्लिक से कितना कब लेना है, ये सब डिसीजन लेना है। क्योंकि वो सब डिसीजन लेके वो सब एक ड्राफ्ट बनाना है, उसको सबमिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, बाद में बोलेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, प्रमोशन स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज ओवर ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, दैट इज प्रमोशन। विद इन द प्रमोशन जस्ट यू रिकॉल व्हाट आर द स्टेजेस, फाइनेंशियल प्रोपोजिशन, उसके बैकवर्ड में जाइए, असेंबली, फिर इसका क्या है, एन इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवरी ऑफ आइडिया। देयर आर 4 स्टेज वी कैन रिकॉल 10. These are the steps we have discussed. Now incorporation you see, हो गया, आप तो सब मैनेज हो गया, मटेरियल हो गया, आप तो कोई तो उसको रिकॉग्निशन देना है। मैं जन्म ले लिया, दुनिया में आ गया, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का हूँ, कौन सा बिरादरी का हूँ, कैसा, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं सोसाइटी। तो हम लोग को बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है। सिमिलरली एक कंपनी जन्म ले लिया, स्टार्ट करने के पहले, उसको स्टार्ट होने जस्ट स्टार्ट, प्राइवेट कंपनी के लिए इतना काफी है, वो बस इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, बस उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, प्राइवेट कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या चाहिए, हमको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, मेरा नाम उत्तम है, सोसाइटी विल रिकॉग्नाइज मी, तो उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसी तरह मेरा कंपनी एक्स कंपनी है, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिस्टम। तो फॉर इनकॉर्पोरेशन क्या चाहिए, ए कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड, परमिटेड, रन बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ, रजिस्टर ऑफ कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए स्टेप्स,
प्रोमोटर हैज टू फॉलो सम स्टेप्स। क्या है पहला स्टेप है, नाम का जो मैंने बोला अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहां से? रजिस्टर्ड ऑफिस से। हमारा कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड ना, वाई लिमिटेड ना, जेड लिमिटेड, व्हाटएवर द नेम, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द ऑथोरिटी। देयर इज नथिंग बट रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इसको क्या बोलते हैं देखिए, it has to be ensured that name selected for company does not match with the name of other company। किसी और यूनिक नाम होगा, this name should be unique, किसी और कंपनी से नहीं होगा। The promoter has to fill name availability form and submit it to the register of companies along with the necessary fees भी जमा करना पड़ेगा। The name must include the words, very important, नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ओनली लिमिटेड, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है तो पीपीटी और प्राइवेट लिमिटेड नाम के बाद, जैसे एक्स लिमिटेड तो ये पब्लिक लिमिटेड, अगर ये एक्स के अंदर में पीबी लग जाएगा मतलब प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज द डिफरेंस। नेम मस्ट बी अकम्पनीड विद द लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड। वंस इट इज अप्रूव्ड, प्रोमोटर कैन प्रोसीड विद अदर फॉर्मेलिटीज। इनकॉर्पोरेशन के लिए आगे जा सकता है। अगर नेम अप्रूव नहीं हुआ तो नहीं जा सकता। यूनिक, द नेम शुड बी यूनिक, उसका कोई नाम नहीं, ये नाम से कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए वर्ल्ड लेवल। नेक्स्ट इसी क्या डॉक्यूमेंट जरूरत है? नेक्स्ट स्टेप्स टू गेट इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ नेम, promoters make application to the register of companies to state that क्या है कंपनी कहां सिचुएटेड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, ठीक है। द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मस्ट बी accompanied उसके साथ accompanied फॉलोइंग ये सब डॉक्यूमेंट देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का है वो रजिस्टर्ड करेगा उसको, ठीक है, उसको सर्टिफाइड करेगा। द एप्लीकेशन में क्या क्या देना है? डॉक्यूमेंट देना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है? लिस्ट ऑफ पर्सन जो डायरेक्टर बन गया है उनका कंसेंट के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाना है। प्रपोज डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर का कंसेंट लेना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? नोटिस अबाउट एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, हमारा कंपनी का मेन ऑफिस, हेड ऑफिस कहां होगा, इसका एड्रेस के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए। कंपनी कॉपी ऑफ द नेम अप्रूवल, जो अप्रूवल मिला है हमको रजिस्टर ऑफ कंपनी से, नाम का हमारा जो नाम है उसका एक सर्टिफिकेट मिला है, वो जरूरी है उसके साथ। और एक चीज जरूरी है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, कि हम जो कंपनीज एक्ट है उसका सब फॉलो करेंगे, ऑडिट करना, ये करना वगैरह वगैरह सब हम फॉलो करेंगे, ये डिक्लेरेशन की जरूरत है। दिस आर द डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड टू फॉर इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद क्या है? करने के बाद फीस देना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड फीस है, पेमेंट ऑफ फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस उसको देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट डॉक्यूमेंट के साथ क्या देना पड़ेगा? फाइलिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। देन उसको क्या मिलेगा? अगर रजिस्ट्रार खुश हो गया, satisfied है, after scrutinizing the documents, he will issue one certificate of incorporation। एक सर्टिफिकेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट दे देगा। तो उससे क्या होगा? प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट बिजनेस, माइंड इट। ये देने के बाद प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट बिजनेस, ठीक है। इट इज नथिंग बट वन देखो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट ये थर्ड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन है, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन, फर्स्ट स्टेज क्या था? प्रमोशन। माइंड इट, मैं बार-बार बोल रहा हूं, फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रमोशन। सेकेंड स्टेज क्या है? इनकॉर्पोरेशन। थर्ड स्टेज क्या है? कैपिटल और सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। लास्ट स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। चार स्टेज पे ये थर्ड स्टेज है। आफ्टर कंपनी इनकॉर्पोरेट, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, कंपनी को जरूरत का पैसा मार्केट से लेना है। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो क्या करेगा? मार्केट में लोगों को इनवाइट करेगा, पब्लिक को इनवाइट करेगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, पैसा कंट्रीब्यूट कीजिए इन आवर कंपनी बाय परचेजिंग द शेयर्स, सर्टिफिकेट और डिबेंचर्स एंड डिबेंचर्स। See, in case of private limited company, funds are raised from the members through arrangement of from bankers or so. But in case of public limited company, mind it, public limited company share capital has to be, that is very important.
हैज टू फॉलो दिस स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे वो लेगा मार्केट पब्लिक से पैसा, पब्लिक लिमिट नहीं मीट सेलिंग इज ए पब्लिक कंपनी, सो पब्लिक का पैसा उसमें है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक के से पैसा लेने के लिए एक प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और उसको इंस्पेक्ट करेगा बाय सेबी, सेबी का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, एक कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्टर ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जमा करना है। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक को इनवाइट करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना है, ठीक है, न्यूज़पेपर में दे सकता है, इंटरनेट में दे सकता है कि हमको हमारे कंपनी में पैसा लगा। अगर लोगों ने पैसा अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना है, मिनिमम से 1 करोड़ रुपया लोगों से इनवाइट किया, ठीक है, सपोज पब्लिक कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसमें 90% अगर आ जाता है तब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, मतलब यहाँ नहीं लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम मींस 90% ऑफ द ऑफर टू द पब्लिक मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, ठीक है। शेयर शुड बी अलॉटेड, तब जाके शेयर बंटना है, अगर 90% पूरा नहीं होता शेयर नहीं दे सकते टू द एप्लीकेंट्स एज पर सेबी गाइडलाइंस। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना, नाम को लिस्टेड कंपनी के रूप में रहना पड़ेगा, मतलब कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंपनी का नाम, वेयर टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी फैसिलिटी टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स वो शेयर ट्रांसफरेबल शेयर है, किसी के पास बेच सकता है, ठीक है। तो it should be considered nothing but listing the shares in the recognized stock exchange, Bombay Stock, whatever may be. Now there are 3 stock exchange, Bombay, NSE, Bombay, NSE and Metropolitan. Okay, next, last stage, nothing but commencement of business. Business शुरू कर सकता है if public, कौन कंपनी, public company, if public company able to get the certificate of commencement from the respective authority. See, private company को जरूरत नहीं है, certificate of commencement of business किसी must be obtained by the register from the register of companies before starting, ठीक है। तो रजिस्टर कब देगा, कब देगा, डिक्लेरेशन देने के बाद, ये सब देने के बाद प्रोस्पेक्टस दोबारा देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, शेयर्स हैव बीन अलॉटेड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा किया, डायरेक्टर्स हैव टेकन अप परचेज द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, डायरेक्टर को भी शेयर खरीदना है, नंबर ऑफ शेयर मिनिमम रिक्वायर्ड, दैट नो मनी इज लायबल टू बिकम रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट्स बाय रीजन ऑफ फेलियर, कोई किसी का मनी वापस नहीं होगा, ऑब्टेन परमिशन फॉर शेयर्स टू बी ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट में बेच सकता है, आपने शेयर खरीदा नया शेयर, उसका पैसा वो वापस नहीं करेगा, लेकिन आपको कहाँ मिलेगा, आप बेच सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ये सब है। Statutory declaration by director or secretary of the company stating that requirements relating to the commencement have been complied with the register of companies. Then he will scrutinize all these documents and if satisfied, then he will issue the commencement of business, certificate of commencement of business. Okay, stages is over. My dear student, let's know what are the documents. Important documents are required to be prepared by the promoters to start or forming joint stock company. Very important. First document is nothing but memorandum of association. Second document is nothing but article of association. Third, prospectus. So let us start. ये सब डॉक्यूमेंट साथ में जाना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के साथ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के साथ, ठीक है। प्रोस्पेक्टस तो मालूम है, मैंने बोल दिया, प्रोस्पेक्टस लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है। लेट अस डिस्कस अगेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है, जहां पे लिखा रहता है कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इसे नथिंग बट इज ए चार्टर ऑफ द कंपनी, अल्टीमेट कंपनी का ऑब्जेक्टिव गोल क्या है। इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस upon which the company is allowed to incorporate and registered. फंडामेंटल कंडीशन जो है उसके ऊपर वो कंपनी काम करेगा, कैसे चलेगा क्या नहीं, वो ही है विदिन द कंपनी ओवरऑल उसका ऑब्जेक्टिव समझाता है। इट डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द कंपनी का कितना पावर है, कितना लिमिटेशन है, क्लियर का डिफाइन करता है, ठीक है। इट डिफाइन द रिलेशनशिप कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करेगा, ये भी डिफाइन करता है, ओके। दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट उसके अंदर में क्या क्या पार्ट है, क्लॉज है, देयर आर 6 क्लॉज। नंबर 1 नेम क्लॉज, पहला पेज में जैसे कि क्लॉज है, पहला नाम लिखा रहेगा,
सिचुएशन कहाँ वो सेटअप है, कहाँ वो सिचुएटेड है, कौन सा जगह पे, कौन सा शहर में, कौन सा गांव में, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसका लायबिलिटी, जैसे कि उसका लायबिलिटी नहीं, एक एक मेंबर का कितना लायबिलिटी होगा, शेयरहोल्डर्स का कितना पैसा लायबिलिटी है आउटसाइडर को, अगर कंपनी बंद हो जाता है तो आउटसाइडर को कंपनी देना है, लेकिन शेयर होल्डर कितना देगा उसे, कितना उसका फिक्स करना है, वो उस लायबिलिटी क्लॉज में। कैपिटल क्लॉज में मतलब क्या, वो ओनर्स का फंड कितना रहेगा, कितना कैपेसिटी है बिजनेस का, कंपनी का शेयर बाजार में बेचने का, प्रेफरेंस शेयर बेचे या इक्विटी शेयर बेचे या डिबेंचर बेचे, ये सब डिटेल्स में मेंशन रहेगा, और वो अप्रूव हो जाएगा तो कंपनी का कैपेसिटी बोलेंगे उसको। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन क्लॉज मींस जहां पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द लिस्ट 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड, 7 आदमी का डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, एंड 2 मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मिनिमम 2 आदमी प्राइवेट के लिए या 7 आदमी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए डिटेल्स में लिखना है। इट कंटेन्स डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु आर डिजायर्स ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड इनटू एग्री एज सब्सक्राइब द नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम्स, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन विद द कंपनी, डे टू डे एक्टिविटीज कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, इट्स कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस रूल्स आर आल्सो कॉल्ड द बायलॉज, ठीक है, कवर्स वेरियस राइट्स पावर्स ऑफ द मेंबर, एक मेंबर कितना पावर, किसका क्या ड्यूटी है, मैनेजर का, सुपरवाइजर का, वर्कर का, ये सब डिटेल्स मेंशन रहेगा, ठीक है। Rules given in the area must be in conformity with the member, very important, ये must maintain the conformity, उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बाहर नहीं जा सकते, उसके अंदर रहते। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी जनरली कंटेन्स क्या क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन विद रिगार्ड टू किस बारे में लिखा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा, यूज एंड कस्टडी ऑफ कॉमन सील, कैसे कौन करेगा, कैसे किसके हाथ में ये पावर रहेगा, इसके बारे में लिखा है, ये मेन है। कंपनी एज आर्टिफिशियल पर्सन, वो वैलिड कब होगा, जो कॉमन सील यूज हो जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट में। अलॉटमेंट कॉल्स इन लिeu ऑफ शेयर्स का कितना मेंशन करना है, कैसे कितना अलॉटमेंट करना है, क्या नहीं, ये सब मेंशन रहेगा शेयर के बारे में। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर ट्रांसफर होगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब। कोई शेयर होल्डर ने पूरा पैसा नहीं दिया, उसको फॉरफिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में यहाँ लिखा रहेगा, कैसे करना है, रीइश्यू कैसे करना है, कैसे उसका कंडीशन है। शेयर कैपिटल का अल्टरेशन करना है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में लेना है, डिबेंचर कन्वर्ट करके शेयर में इश्यू करना है, कन्वर्टिंग फैसिलिटी उसमें है या नहीं, वो लिखा रहेगा। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कैसे इश्यू करना है, उसके ये सब के बारे में, क्वालिफिकेशन अपन डायरेक्टर का क्या होगा, तनख्वाह कैसे होगा, अकाउंट्स एंड ऑडिट कैसे होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे होगा, ये सब के बारे में लिखा, विद इन द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के डिटेल्स में कंपनी के बिजनेस लिखा रहेगा, इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट prospectus, very interesting, we have learned earlier also, prospectus is a document which is prepared and issued to the public to invite the public to subscribe in the company. See, this is done by issuing document called prospectus. Under Companies Act, prospectus has been defined, any document described or issued as a prospectus and includes any notice, circular, advertisement, पेपर में दिया रहता है, पेपर में न्यूज दिया रहता है, एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है, इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि पैसा लगाओ शेयर में और परचेज करो, डिबेंचर खरीदो, ये सब इनविटेशन रहता है। सो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द कंपनी, टू इंड्यूस द पब्लिक को मोटिवेट करना कि हमारे शेयर का खरीद के इन्वेस्ट करो या डिबेंचर खरीदो, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना है अबाउट द कंपनी का सही ढंग का इंफॉर्मेशन देना है उसको, ठीक है, एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। Okay, these are the prospectus usually contains what are the prospectus में है, ये सब लिखा रहता है और again it is mentioned here. Now these are the questions you can go through, you can find the answer also from your side. There are 10 questions I think, yes, 10 questions I have prepared, you can go through and solve it, or you can prepare notes also by using your textbook, NCERT textbook and reference book. Okay, thank you very much. Hope all of you have understood with this word. Well, thank you very much.